right? So we have to begin by chanting Omkaram 3 times. This is our custom. So all of you join your hands, close your eyes, and chant Omkaram 3 times with me. Ram? Yes, better. So, whatever we have learned so far regarding adolescence, till so far, any question? Tell me. One question you asked about AIDS, है ना? HIV. Of course, Pooja, Sairam, just now joined. So I ran. Okay, beta. So here I am going to print my screen. Before that, let me open my science book also. Okay. Store and Science NCERT class 8. Yeah, chapter number 10. Okay. So let me print my screen. Yes. Open. Okay, my dear. So here I'm going to print my screen. So till now we have learned that how is the new baby born, whether she will be a male child or a female child, that will be easily determined. Can you see the book, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good, good, Yes, good. sir. So, opening one by one. Little late is running. It to open. This we have studied, right? Whether the child born will be a male child or a female child, and what plays the actual role? Which cell? We have how many pair of chromosomes? 23. 23. 23. 23. Out of these, 22 pairs are called Autosome. and one pair is called Allosome. Allosome. Allosomes. this one pair Allosome. of chromosome. This one pair of chromosome is also called sex chromosome, and this determines whether the developing embryo will be a male child or a female child. In male, this one pair of chromosome is X and Y, and in female it is X and X only. So there are two types of sperm. A sperm may be carrying X chromosome, or a sperm may be carrying Y chromosome. And the ovum or egg, it always carries X chromosome. So at the time of reproduction, what happens? The sperm cell, it undergoes meiotic cell division. That is, it becomes half, right? So the two chromosomes X and Y, they become separated. So a sperm may be of two types: a sperm carrying X chromosome, a sperm carrying Y chromosome. Similarly, ova also divide into half, and this is carrying, each ova is carrying X chromosome. So when Y sperm carrying Y chromosome
fertilizes an egg that is always carrying X chromosome. So the resulting zygote will have XY pair of chromosomes, that will be a male child. And if a sperm carrying X chromosome fertilizes an egg that always carry X chromosome, then the resulting zygote will have pair of XX chromosomes, and that will be a female child. Right? So at the time of zygote formation, this code is already there, whether it will be developed into a male child or a female child. Okay? Then we learned about other hormones also. Any question regarding other hormones? We also learned about insect hormones. We learned about metamorphosis. है ना बेटा? Now, reproductive health. Okay? You all know the adolescence is a rapid growth taking place phase of life. So what happens whenever something more is formed, so waste is also formed. Isn't that? आपने देखा होगा किसी मूर्तिकार को मूर्ति बनाते हुए, तो मूर्ति बनाने के साथ साथ उसके आसपास बहुत सारी मिट्टी अनयूज रह जाती है, या जो बनाता है उसमें से बचा रह जाता है, या आपके घर में बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हो, या आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन होती है, तो बहुत सारा सामान अनयूज भी रह जाता होगा, या कुछ वेस्ट बनता है, रहता है या नहीं रहता है? Yes, sir. रहता है ना? So Yes. same thing happens in Yes, the body sir. also. Since the body is undergoing drastic changes, right? So what happens? Waste are also produced in the body, and that must be taken out. Body takes it out. We have to take care a little bit for its cleanliness. So first of all, let us learn about nutritional needs of the adolescents. You all know adolescence is a period of life in which body undergoes reproductive maturity. So what happens at this time? We need nutritious diet, right? You cannot replace your regular meal by simply chips, tinned cans, etc. बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो शॉपिंग में जाते हैं, एक पिज्जा लिया, पिज्जा खा रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक लिया, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और उनका मील हो गया, लंच हो गया उनका. Will this fulfill all the nutritional demand? Tell me. No, sir. Never. Body needs a balanced diet, and that balanced diet will only be possible when you focus on the meal which is prepared by your mama, which is prepared in your family, and as per your family demand, they know what should be eaten. Even season wise हमारे घरों में अलग अलग तरह के खाने बनते हैं. अभी विंटर आ गया, आप देखे होंगे कि आपके घर में खाने का स्टाइल थोड़ा बदल गया होगा, है ना? अभी हम लोग तिल का यूज थोड़ा बढ़ा दिए होंगे. आप लोग खाते होंगे ना, अभी गजक खाते होंगे, चिक्की खाते होंगे, मूंगफली और गुड़ की खाते हैं, Yes, sir. है ना? तो इन सब में क्या होता है, Yes, थोड़ी sir. हीट सर मिलती है. गर्माहट मिलती है. हाँ, जो जरूरी है अभी है सीजन के हिसाब से. तो हमारा जो डाइट है ना बेटा घर का, हम भले कई बार नाक मुंह सिकोड़ते हैं, लेकिन आप उनको पहले खाइए, बाद में क्वेश्चन कीजिए, राइट? Adolescence is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. है ना? It must be a balanced diet. Okay, our Indian meal of roti or rice, dal and vegetables is a balanced meal. देखिए, अपने घरों में सिर्फ चावल नहीं खाते, सिर्फ दाल नहीं खाते, सिर्फ रोटी नहीं खाते. अगर हम खा रहे रोटी है, साथ में क्या होती है? एक कटोरी दाल होता है, सब्जियां भी होती है, या कभी कभी थोड़ा रायता होता है, दही होती है हमारे पास, होता है ना बेटा? तो आप ध्यान से देखिएगा. सो यू विल हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, proteins, fats, vitamins and minerals, and the vegetable which we choose, generally it is leafy and vegetables which gives us fibers. So including fibers and roughage and water, all are available in our diet, and that is very essential. Milk is a balanced diet, remember itself. So fruits also provide nourishment. For infants, mother's milk provides all the nourishment. But as you are in adolescent age, you must include milk in your diet. You must include fresh vegetables and fruits. और फ्रूट्स में भी जिन फ्रूट्स को हम
छिलके सहित खा सकते हैं, उनको अच्छे से धोकर साफ करके हमें छिलके के साथ दांत से चबा चबा कर खाना चाहिए. So that will give you enough roughage also, and it will be have a full exercise of your mouth, your teeth, etc., your gums also. कई बार गम्स के साइज नहीं होने चलते हमारे दांत ढीले पड़ जाते हैं और जल्दी गिरते हैं. ओके. आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी को गुड़ बोलते हैं, मीट, नॉट ऑलवेज, है ना, दोज फैमिली वेयर इट इज परमिटेड, सिट्रस फ्रूट्स, इंडियन गूसबेरीज को आंवला बोलते हैं, आर गुड फॉर एडोलेसेंस. अभी आंवले का सीजन है, देखिए देखा होगा आपने मार्केट में बिकता हुआ आंवला, है ना. आंवले का कितना सारा चीज बनाते हैं हम, आपके घर में खुद मम्मा बनाती होंगी या फैमिली में बनाते होंगे, नहीं तो आपको मार्केट में अवेलेबल है. आंवला का मुरब्बा, है ना, आंवला का कैंडी, कैंडी तो बहुत पसंद होगा, है या नहीं, Yes, sir. है ना. Yes, sir. Yes, sir. वो बिल्कुल दोनों फायदा करेगा. अभी ठंड से बचाता भी है हमारे पास. विटामिन सी इट बूस्ट आवर इम्यूनिटी. विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर है तो हम इम्यूनिटी हमारी बॉडी की अच्छी रहती है, हम जर्म्स वगैरह से फाइट कर सकते हैं. अभी आपने देखा होगा कोविड-19 में भी हमें विटामिन सी लेने के लिए कहा जाता है ना, कई बार सुना होगा आपने. ओके. सो देयर इज अ क्वेश्चन, है ना, कैन चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स रिप्लेस द रेगुलर मील ऑफ द एडोलेसेंट्स? No, sir. No, sir. है ना. Why? Because these chips and tinned cans, they are not having all the nutrients which our body needs at the time of adolescence. We need a balanced diet which is only provided when we take the homemade food, है ना, having variety of food items in that. ठीक है. सो लास्ट लाइन देखिए, चिप्स एंड पैक्ड और टिन स्नैक्स दो वेरी टेस्टी, टेस्टी बहुत होते हैं, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. ओके. आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, आप लंच में क्या लेते हो, आप डिनर में क्या लेते हो, एंड यू कैन कंपेयर इजीली. देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, न्यूट्रिशनल आइटम्स ऑफ फूड. देखिए वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, और कितना अट्रैक्टिव होता है जब डिफरेंट कलर आप देखते हैं तो ऐसे खाने का मन करता है, करता है नहीं करता है. Yes, sir. Yes, sir. फ्रेश फ्रूट्स, अभी देखिए गुआवा का सीजन अभी है, अभी जहाँ आप देखिए रोड किनारे गुआवा बिकता हुआ मिलेगा आपको, है ना. मिल्क एंड एग दोज इन दोज फैमिलीज which is where it is allowed, not necessary, right बेटा. and then grains, all type of grains, है ना. multi grains are very good for our health, right. then second part, we have first part understood. We have to focus on Yes, sir. balanced diet, nutritional need, है ना, that we have to focus, राइट. पहले अच्छे से खा लीजिए फिर शिकायत कीजिए. कभी होता है कभी कभी आपके मनपसंद खाना नहीं बनेगा, टेस्टी नहीं होगा. देखो जो चीज हमारे टंग को पसंद है खूब, वो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और जो टंग को पसंद नहीं है बहुत ज्यादातर, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है. ऐसा कभी फील किया आपने? Yes, sir. कभी कभी सर. और हम सुनते किसकी हैं ज्यादा? Better. टंग की The ज्यादा. turkey. क्योंकि टंग की ज्यादा नहीं सुननी, हमें सुननी किसकी है? अपने ओवरऑल नीड की सुननी है, अपना एज ग्रुप देखना है, फील करना है, और अकॉर्डिंगली हमें अपना डाइट प्लान करना चाहिए. ठीक है. टंग को भी चाहिए तो टंग के लिए बहुत है, तो सप्ताह में एक दिन खा लिया, 15 डेज में एक दिन खा लिया, जो आपका बहुत फेवरेट डिश है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा पसंद है, चाउमीन बहुत पसंद है, पिज्ज़ा अगर बहुत पसंद है, तो महीने में एक आध बार, महीने में 2 बार खा लिया, दैट इज ऑल. लेकिन ऐसे हमारे हाथ में होना चाहिए कि हमें पिज्ज़ा बहुत पसंद है तो डेली और ऑलमोस्ट 2 दिन पर या 8 दिन में एकदम से हमें पिज्ज़ा चाहिए, हम हल्ला मचाएं बिल्कुल ही, तो दैट इज नॉट गुड फूड. ओके, है ना. हम समझदार हैं. देखिए आपकी, मैंने बताया था आपको कि यू आर नॉट ग्रोइंग ओनली बाय बॉडी, बट यू आर ग्रोइंग मेंटली, इंटेलेक्चुअली ऑल्सो. सो यू शुड यूज दिस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जो हमारे पास, हम अध्यात्म की भाषा में हम लोग
बाल विकास भी करते हैं अपने स्कूल में। आप तो स्कूल में हो नहीं, तो होता है ना हमारे पास बेटा, है ना, 2 दिन तो अपने क्लास में करते हैं हम, ट्यूसडे को और कौन से दिन करते हैं? फ्राइडे। फ्राइडे, वेरी गुड। तो उसमें हम बात करते हैं, राइट बेटा। तो आध्यात्मिक रूप से भी आप देखेंगे तो जो हमारा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारी सोच बनती है, उसी तरह से हमारे थॉट प्रोसेस में भी जाता है। तो ऐसा बहुत जरूरी है कि अन्न जो होना चाहिए हमारा प्योर होना चाहिए। कहते हैं अन्नम का ब्रह्म, बाबा से फूड इज गॉड, गॉड इज फूड, सो डू नॉट स्पॉइल फूड, है ना। फूड को हमें उतना ही, आप पहले सोचिएगा ना बैठ कर कभी भी कि जो फूड हमें आ रहा है, रिमेम्बर फूड के बिना तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं बेटा। ये फूड हमें किन किन सोर्सेज से आ रहा है, अगर आप इन पर एक थॉट प्रोसेस में लाओगे और ट्राई टू राइट एन एसे और पैराग्राफ, देन यू विल लर्न कितने वेराइटी और कितना मेहनत लगता है इस फूड को बनाने में, और कितना जल्दी हम इसको बर्बाद करते हैं, या हम कई बार तो प्लेट में भर लेते हैं और खाते भी नहीं, फेंक देते हैं। मेनी पीपल डू नॉट गेट फूड। ओके, so now next part is our personal hygiene. Hygiene means taking care of our Cleanliness. health, है ना, cleanliness. Everyone should have a bath at least once every day. This is very essential बेटा। कम से कम एक बार तो स्नान बहुत जरूरी है। और स्नान में भी कैसे, मग में पानी भरा, ऊपर से डाला और हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। रबिंग, रब करना है, मोटे तौलिया जो होता है उससे बॉडी को रब करना है, क्योंकि एट दिस टाइम लॉट्स ऑफ वेस्ट इज फॉर्म्ड, स्वेटिंग बढ़ जाती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस है स्किन के ऊपर में। और आप अगर आप रब करके स्नान करोगे तो दैट ऑल विल गो ऑफ, है ना। ऑफ कोर्स आजकल तो वेरी गुड सोप, है ना, वी आर हैविंग अवेलेबल, बट स्टिल व्हेन यू अप्लाई ऑल दी यू शुड रब योर बॉडी। It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. कई बार आपको लगेगा ना कि हमारे बॉडी से खुद ही ऐसी स्मेल आ रहा है, आपको पसंद नहीं आएगा। बस कारण क्या है, आप यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर क्लीनलीनेस, है ना, बस सिर्फ इतना ही कारण है। और हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा डीओ ले आए, है ना, वो ऐड आता है ना, और क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, और क्या चल रहा है, फॉग ही चल रहा है। वो फॉग से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिओड्रेंट लगा लिया और दैट्स ऑल। ऑफ कोर्स इट इज नीडेड at some point of time, but if you take care of your cleanliness, of course you will not require to apply deos etc at all. Without that your body, you will be pleasant, you will enjoy the smell of your body yourself. All parts of the body should be washed and cleaned every day. Particularly, we are having some private parts. These must be also cleaned properly. है ना? If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. याद रखिए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है। Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow particularly. They should keep track of their menstrual cycle, है ना, कैलेंडर में आप नोट टिक लगा सकते हैं, इससे क्या होगा, आपको ट्रैक रखना आसान होगा, राइट, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। Okay, another thing very essential, that is your physical exercise. You all must do physical exercise. That will help you to groom a very nice, well balanced personality. Right? Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. Remember, इसमें थोड़ा पसीना निकलना चाहिए, ऐसे गेम्स खेलने हैं, है ना। और अगर नहीं जा सकते हैं बाहर तो घर के अंदर भी, जैसे अभी सर ने अभी आप लोग ज्वाइन किए थे 11 बजे, सॉरी हाँ 11 to 11:30, Yes, Yes, sir. sir. है ना। उसमें देखो आपने बताया सर ने स्किपिंग कर सकते नहीं, कुछ स्किपिंग मिल जाती है आराम से, आप स्किपिंग लॉन्गर टाइम करेंगे ना, ऑब्वियसली यू परस्पायर फ्रॉम हेड टू फुट, राइट, सो दैट इज एसेंशियल। ऐसा नहीं बैठे बैठे बस खेलना, खेल लिया हमने, थोड़ी सी साइकिलिंग आप कर सकते हैं अगर आपके पास आसपास उतना एरिया अलाउ है तो, है ना। स्विमिंग की फैसिलिटी यहाँ आप स्विमिंग कर सकते हैं।
Okay, and very very essential is say no to drugs. है ना? Adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is a normal part of growing up. ये नॉर्मल है. आपका माइंड कई बार पॉजिटिव सोचेगा, कई बार नेगेटिव थॉट भी आएंगे. So do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor. कई बार लोग कहेंगे अरे क्यों परेशान हो, इतना क्यों सोचते हो, ये ले लो, है ना, वो ले लो. देखो, ड्रग्स लेने के बाद थोड़े समय के लिए क्यों क्या करता है, वो नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है बेटा, और उससे लगेगा कि अरे हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. बट लेटर ऑन इट बिकम्स एडिक्शन. आप उसके एडिक्शन हो जाएंगे. एडिक्टिव हो जाने के बाद में अगर वो ड्रग नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में ऐसा पेन होगा, ऐसा पेन होगा कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे ड्रग लेने के लिए. एंड पीपल गो ऑन रॉन्ग पाथ, है ना. इफ यू टेक देम वंस, अंडरलाइन, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन. एक बार लिया तो बार बार लेने का मन करेगा. दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन. लंबे समय के बाद आपका शरीर इतना बर्बाद हो जाएगा कि रिकवर करना मुश्किल होगा. बहुत मुश्किल से रिकवरी होती है. उसके लिए अलग कैंप लगते हैं, कैंप में जाना पड़ता है, और वहाँ पर बहुत ही संयम के साथ कुछ लोग होते हैं जो रिकवर कर पाते हैं. They ruin health and happiness. Remember, so never, always say no to the drugs. है ना. जब भी ऐसे कोई आपकी कंपनी मिले, कोई आपको ऐसा करने के लिए कहता है, डू टेक कॉन्फिडेंस विद पेरेंट्स. पेरेंट्स को बताइए कि मेरा दोस्त है या ये ऐसे मुझे ये खाने के लिए कह रहा है. ऑलवेज रिमेंबर इट. एंड नेक्स्ट, जस्ट यू आर आस्क्ड अबाउट, you must have heard about AIDS, acquired immune deficiency syndrome, which is caused by a dangerous virus, HIV, human immunodeficiency virus, HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person. याद रखिए, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसी से आप तक आएगा. ऐसे इन्वायरमेंट से नहीं मिलने वाला आपको. कुछ खा लिए, कुछ पी लिए, किसी से हाथ मिला लिया, ऐसे नहीं आने वाला है बेटा. इन्फेक्टेड पर्सन से तभी आएगा, नंबर 1, बाय शेयरिंग द सिरिंजेज यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स. कई बार कुछ ड्रग्स होते हैं जो इंट्रावेनस, वेन के अंदर लेते हैं, वेन के अंदर ऐसे ले लेते हैं. तो क्या करते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, है ना, जिनको अच्छे काम करना ही नहीं है, आतंकवादी लोग हैं, ठीक है, तो ग्रुप बना लेते हैं. 4-5 लोग बैठ जाए इकट्ठा, एक सिरिंज लिया, थोड़ा सा ड्रग लिया, दवाई लिया उसमें, फिर एक ने लगाई थोड़ी सी, फिर दूसरे को दी, दूसरे लगाई, दूसरे लगाई. तो क्या हो रहा है बेटा, एक के ब्लड का कांटेक्ट दूसरे के ब्लड के कांटेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए. Yes, sir. और फिर क्या होता है, एक का इन्फेक्शन दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है. इसलिए आजकल ऐसे भी प्रिकॉशन, देखो क्या हो रहा है, डिस्पोजेबल सिरिंज आ गए हैं. इवन इसी प्रिकॉशन के चलते कि एक बार अगर जिस सिरिंज का नीडल का यूज किया उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, देखते हैं ना, तोड़ के फेंक देते हैं उसको, फिर दोबारा यूज नहीं करते, है ना. लेकिन वो लोग क्या करते हैं, आपस में ऐसे करते हैं. सो याद रखिए, जो सिरिंज यूज कर रहे हैं अगर वो इन्फेक्टेड है और उसका अगर हमने यूज किया, एंड इफ दैट सिरिंज हैज बीन इन्फेक्टेड बाय एन एड्स पर्सन, देन देयर इज चांसेस ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन ऑफ दिस वायरस. इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क. अगर मदर को एड्स है तो उसका बच्चा, अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको भी एड्स होने की संभावना होगी, राइट. And the virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. अगर कोई पर्सन जो HIV इन्फेक्टेड है और उसके साथ अगर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो भी क्या होता है, उससे भी ड्यूरिंग दैट टाइम द चांसेज ऑफ कैचिंग इन्फेक्शन. तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि एक्वायर्ड है, हम खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर हमें एड्स होता है, right. If you take these precautions, this will never be transmitted to you and there is no chance of that. So याद रखना है कि इवन जो रेजर वगैरह होते हैं ना बेटा, उनको भी हमें न्यू फ्रेश रेजर यूज करना चाहिए, और दूसरे का यूज किया रेजर हमें खुद यूज नहीं करना चाहिए. इवन सैलून में जाते हैं, देन रिक्वेस्ट द बार्बर टू यूज न्यू ब्लेड फॉर यू,
है ना, नया ब्लेड खोलकर तोड़ के उससे आपके जो भी शेविंग कराना है, कटिंग कराना है, उसमें यूज करें वो, है ना। और इंजेक्शन तो अभी डिस्पोजल से आ गए हैं, कोई चांसेस नहीं है। मदर अगर उनको पता है तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, एंड ट्रीटमेंट इज देयर, द चाइल्ड कैन बी सेफ फ्रॉम दिस। एंड लास्ट वन इज वेरी वेरी एसेंशियल बिकॉज through reproduction also this is caused, and by this method is spreading more in all over the world. Okay, some points are there in the boxes: myths, taboos, do's and don'ts. Read it. If you want to ask any question, ask me. Adolescence, pregnancy, this is very important point beta. What happened, as I told you in the beginning, this is the phase when body has not become mature, it is marching towards maturity. Of course you will become, you are able to, you are capable of reproduction, but the organs are not still mature. You will attain maturity once the phase of adolescence is over, and after then, if reproduction, the process of reproduction is continued, then the body is fully prepared. Otherwise, what happens? It causes deterioration in our body. हमारे इंडिया में आप देखिए, इंडिया इज ए वार्म कंट्री, यहाँ पर एडोलेसेंस एज में ऐसा लगता है कि जल्दी से हम वी I mean grows of that level, but body is not fit for that. And हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कम उम्र में शादियां कर देते हैं, and because of that particularly the girl has to suffer a lot. उसका हेल्थ बहुत डिटोरेट होता है. You might be knowing that in our country the legal age of marriage is 18 years for girls and 21 years for boys. मैं तो कहता हूँ 18 years गर्ल्स के लिए भी इसको भी और थोड़ा ऊपर ले जाना चाहिए. This is because teenage mothers are not prepared mentally or physically for motherhood. Early marriage and motherhood cause health problems in the line, in the mother and the child. दोनों का जीवन बर्बाद होता है. जो बच्चा जन्म लेता है वो भी उतना हेल्दी नहीं होता, और मदर की बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, एंड शी डाइज एट अ वेरी यंग एज. इट ऑल्सो curtails employment opportunities for the young women. जिस समय वो दूसरे एम्प्लॉयमेंट में जा सकती हैं, सेना में जाकर अफसर बन सकती हैं, उस समय अगर उनकी शादी हो जाए तो फिर ये सब करने में प्रॉब्लम आती है, एंड मे कॉज मेंटल एगोनी, mental pain, as she is not ready for responsibilities of motherhood. Right? So we should take care of these things also as we grow up. Okay. Okay, read those points in the boxes. If you want to discuss any point, you are free to discuss. Now let us see. Again login. Okay, let me log in again. Meanwhile, read the points given beta. Okay, let us focus on through data classes also about this last part, and then we'll have some quiz questions on this. Some myths are there in the table. Read about that. Reproductive health. Let us see this video and note down any question if it comes in your mind. Then do ask me. Okay. Check the sound. Let me check the sound also. Okay. Yeah. Beginning from birth, human life passes through various stages of development. There is a period between childhood and adulthood called adolescence. The period of adolescence is between 12 to 18 years. During this period, the human body undergoes many changes.
These changes include physical as well as mental changes. Physical changes in girls are manifested in the form of onset of menstrual cycle, growth of pubic hair, and breast development. Physical changes in boys are manifested in the form of development of body and facial hair, pubic hair, development of reproductive organs, and voice cracking. Due to so many physical changes that the body undergoes during adolescence, it brings about changes in one's mental state too. It is important to take care of the physical and mental well-being of an individual during adolescence because the body is going through many changes. Let's see how it can be done. During adolescence, rapid growth and development happens in the body. A balanced diet containing proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water and roughage is required for proper growth and development during adolescence. Milk should be a part of the diet as it provides the required amount of calcium, fats and proteins. Iron-rich foods such as leafy vegetables, meat, jaggery and gooseberries are important to prevent anemia. Proper meals consisting of roti, dal, vegetables, meat and rice should be taken during lunch, dinner and breakfast as they provide all the important nutrients. Junk food such as pizza, burgers and fried foods should be avoided as they don't have any nutritional value. Along with a balanced diet, regular exercise and proper sleep is also essential to stay fit and healthy. Okay, my dear, let's go ahead. During the rapid growth stage of adolescence, the sweat glands and sebaceous glands become more active. Increased activity of sweat glands may result in body odor if proper hygiene is not maintained. Odor means Smell. smell. Very good. है ना? And you know why this smell is there during adolescence more? Because of bacterial infections. Okay, let's go ahead. Increased activity of sebaceous glands may result in an outbreak of pimples and acne. Hence, it is important to properly clean the body every day to avoid infections. Girls should take extra care of their hygiene during menstruation. Girls should also keep a proper track of their menstrual cycle. This is the last part. Adolescence brings in a lot of changes in one's body. This may affect the mental state too. Sometimes feelings of confusion and insecurity occur, which may lead to depression. Individuals might turn towards alcohol and drugs to avoid feelings of confusion and insecurity. But this has a bad effect on the body and mind on a long run. Addictions ruin the health of a person. Alcohol, drugs and tobacco are addictive substances and can adversely affect one's physical and mental health. Injecting drugs via syringes also poses the danger of contracting infections.
One may contract AIDS or hepatitis by sharing syringes with an infected person. Adolescence is also a period when one's curiosity is most awakened. Curiosity may lead to sexual explorations and it might have serious consequences. Diseases such as syphilis, gonorrhea, and AIDS are transmitted through unsafe sexual contact. Indulging in constructive activities, avoiding bad peer groups, and maintaining a positive attitude will help you to achieve a well-balanced mental and physical stage during adolescence. Very sincere beta. Always have a positive attitude. Right? Do you know what is my blood group? Sir, be positive. Be positive. Yes. My blood group is positive and I always remain positive. Right? So whatever the blood group may be, that I am just joking. You should always be positive with that. Have positive attitude always. And whenever you have doubt, when you have any such, I mean, confusions, always consult your parents. Your parents are your best friends. Right? You may consult your elder brothers or sisters. Okay, good. Here is the recap of what we have learned. देखिए है ना, डूज एंड डोंट्स। डूज में वेल बैलेंस डाइट, मैंने बताया आपको बेटा, है ना, इट इज नो हार्म। ठीक है, बहुत पसंद है पिज्जा बर्गर समोसा, तो क्या करना है हमें, बीच में कभी कभार, और वो भी अगर घर में बना कर दे मम्मी तो बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि बाजार में क्या होता है कि एक ही ऑयल में बार बार फ्राई करते हैं वो, तो जो वेजिटेबल ऑयल हमारा है ना बेटा, वो जो फैट, जो वेजिटेबल फैट है, देखते हैं वो क्या होता है, जमा हुआ रहता है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। पर्टिकुलरली एक बार अगर यूज कर लिया आपने, गर्म कर दिया, बार बार गर्म करते हैं तो दैट बिकम्स वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन बाजार वाले क्या करेंगे, वो क्या एक बार मान लो समोसा निकाला, तेल को फेंक देंगे, वो फेंकते हैं क्या, बताइए, फेंकते हैं नहीं No, ना, sir. वो तो बार बार उसी तेल को उसी में आपको फ्राई करेंगे, पकौड़ी कचौड़ी जो भी है बार बार खिलाएंगे आपको। लेकिन घर में देखना आप, बहुत ज्यादा मम्मा तो 1 से 2 बार यूज करती है, उसके बाद क्या करते हैं, वो तेल को हटा देती हैं, या उतना ही यूज करती है जितने में उनका काम हो जाता है ना। वेल बैलेंस डाइट, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, दिस इज वेरी एसेंशियल बेटा, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन। एंड आजकल तो मोदी जी ने क्या कहा है, हमारा स्वच्छ भारत अभियान में चला हुआ है, तो हम अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान तो रखते ही है, साथ में अपने आसपास का भी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, सराउंडिंग में हमारा क्लीन हो। अब किसी को बोले नहीं, जितना हम कर सकते हैं हमें खुद करना चाहिए। कोई किसी ने फेंक दिया, चलो ठीक है हम उठाकर फेंक देंगे अगर, तो कुछ इतना, हाँ ये देख लो कि उससे कोई इन्फेक्शन का डर है, तो टेक प्रॉपर केयर, ग्लव्स लगाकर हम करें। रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल बेटा, हम सबको, है ना, और आप लोगों को एडोलेसेंट्स ग्रुप को तो बहुत ही एसेंशियल है। ऐसे एक्सरसाइजेज, फिजिकल फिट कहते हैं ना, साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, है ना, आपका माइंड साउंड शार्प तभी रहेगा जब आपकी बॉडी साउंड एंड शार्प रहेगी, है ना। ये बॉडी हमारा टेम्पल है, इसी में भगवान का वास है, और इसी के थ्रू हम गॉड को अचीव कर सकते हैं। तो शरीर का भी ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। और अब आप बड़े हो गए हैं, आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गुड पीयर ग्रुप, ये बहुत जरूरी है बेटा। ये कंपनी जो है ना, ये बैड कंपनी हमारा सत्यानाश कर देती है ना। हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, ऑलवेज हैव अ गुड कंपनी, है ना। कहते हैं ना, जो संगति का असर, छोटे से आप कहानी सुनते आते होंगे कि अगर एक खराब एप्पल के साथ साथ अच्छे एप्पल को रख दिया जाए तो क्या होता है, बताइए, सुना सर, कहानी अच्छा आपने, वो एप्पल को सब भी खराब खराब कर कर देते हैं। एप्पल्स भी खराब हो जाते हैं, है ना बेटा। कहते हैं ना, कंपनी का असर बहुत ही, आपने एक दोहा पढ़ा होगा, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसोई गुण दीन, है ना। इसका अर्थ ढूंढ कर रखिएगा, आपको बताइएगा अगर क्लास में मुझे। मैंने क्या बताया, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन,
जैसी संगति बैठी तैसोई गुण भी। इंडल्जिंग इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी इज वेरी एसेंशियल। ठीक है बेटा। डोंट जंक फूड अवॉइड करो। अल्कोहल से ऑलवेज नेवर नो, है ना। अल्कोहल पता है क्या करता है? बड़े लोग अल्कोहल लेकर गाड़ी चलाते हैं, ये हमारा रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है। जैसे कोई ड्रंक किए हुए, अल्कोहल ड्रिंक किया हुआ है ना, गाड़ी चला रहा है वो, और आई जो है एक्सीडेंट होने वाला है, वो मैसेज भेज दिया ब्रेन को, लेकिन जो नर्व्स हैं वो लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जब तक ब्रेन को सिग्नल गया तब तक गाड़ी ठोक चुके हैं, तब तक अलर्ट कर रहा है, रुको ब्रेक लगाओ, ये करो वो करो। इसलिए ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं अल्कोहल के चक्कर में। सुना होगा, अखबार में पढ़ते होंगे आप, है ना। ये रिएक्शन टाइम बढ़ा देता है हमारे बॉडी को। जिस समय रिएक्ट कर देना चाहिए था वो लेट रिएक्शन होता है। टोबैको, है ना। अभी तो थैंक्स गोज टू गवर्नमेंट, ये सब बहुत बैन हो गया, नहीं बिकता, लेकिन एक समय तो बहुत ही बिकता था बाजार में। अभी भी कुछ इसी नाम पर, बट उसमें भी टोबैको सर्व कर देते हैं, है ना। तंबाकू इसको हिंदी में बोलते हैं। कभी भी गुटखा पान ये सब जो है ना, इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ड्रग्स नेवर टेक, है ना। हेरोइन, चरस, गांजा, भांग, ये सब ड्रग्स में आते हैं। अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू हैव जस्ट नाउ हर्ड एड्स कैन टेक प्लेस, गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, ये सारे डिजीजेज इट में टेक प्लेस। बैड केयर ग्रुप अवॉइड करना। ओके, so now see some questions also. Okay, let us take up some questions. Okay, which of the following is not responsible for the transfer of HIV? Sharing of the syringe infected with HIV, touching or talking to the person infected with HIV, sexual contact with the person infected with HIV, feeding milk to the baby by a mother infected with HIV. Sir, B. Sir, सर बी। Not responsible, not पूछ रहा है। Sir, इसका D. नहीं होगा। D. डी। Sir, yes, sir. सर Sexual बी touching बी and बी talking to the person. B. सर बी। डी से नहीं होगा। अगर कोई HIV सर पेशेंट है ना, सबमिट। टच कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे खाना भी खा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे इन्फेक्शन नहीं लगेगा। इन्फेक्शन ये एक कारण है। ओके, लेट अस चेक। यस, करेक्ट आंसर। सर सबमिट हो गया। हाँ, नेक्स्ट। Give one word, a meal with all the nutrients in proper proportions. Sir, Balanced balance. diet. Balance diet. Balanced diet. Balanced diet. Very good. Next, what is the full form of AIDS? Sir, C. C. C, C. Let us check. नहीं है C। Sir, C D. नहीं होगा। Acquired बताया था मैंने। Acquired immunodeficiency syndrome, ये A। Option A. ऑप्शन नंबर ए नोट डाउन कर लो कहीं पे, एग्जाम में भी आएगा ये। फुल फॉर्म ऑफ एड्स अक्वायर्ड है। अक्वायर्ड हमने खुद अक्वायर किया है, बुलाया हमने अपने पास। अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। Yes, sir. Why do adolescents need more protein than adults? Sir, adolescence is a period of growth. Last option. Yeah. A. Sir, D. ठीक है, डी। D. वेरी गुड। Why should you always insist on using a disposable syringe for injections? Sir, B. Use syringe may carry the HIV. सर ऑप्शन नंबर बी। Number B. Correct. Which of the following is not a myth? मिथ नहीं है। मिथ मतलब अंधविश्वास, रॉन्ग बिलीफ को मिथ बोलते हैं, विच इज टोटली अनसाइंटिफिक। Sir, B. B. हाँ, बी। और So कोई B. बता है? Option B. कभी कभी मोर ऑप्शन भी सही हो जाते हैं।
ए को भी ले लेते हैं। नहीं, वो नहीं करना। सर नॉट अ मिथ पूछा है। क्या पूछा? नॉट अ मिथ है। यस सर। ये तो मिथ है ना? बी तो सर मिथ है। सी है। सी। सर सी। Yes, Sasi. सी है ना? ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये तो हमें करना ही चाहिए। गुड। लास्ट क्वेश्चन। आंवला और इंडियन गूसबेरी इज ए गुड सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट? Sir, सर option डी, B. विटामिन डी। विटामिन सी। विटामिन सी विटामिन एंड सी आयरन। एंड आयरन। आयरन। या, और अभी सीजन है, खूब यूज कीजिए आंवला अभी, है ना? आंवला की चटनी, आंवला का मुरब्बा, आंवला का अचार, आंवला का कैंडी, वैरायटी ऑफ आई मीन फूड प्रिपरेशन आर देयर। और आपको घर में बन जाए तो बहुत अच्छा है। यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट, है ना? पतंजलि की बहुत अच्छी वैरायटी की आती है, बहुत सारी चीज़ आती है, मुरब्बा भी उसका आता है, कैंडी भी आता है, एंड यू लव दैट, टेस्ट भी अच्छा रहता है। वेरी गुड। सो तो बंद कर दे, है ना? पीछे में भी। चलो, कुछ और क्वेश्चन दिख रहा है जी आपको? यस सर। हाँ जी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ हैं, देखिए। ये हमारा साइंस एग्जाम्पलर का है। आप लोग पास है एग्जाम्पलर बुक? पीडीएफ तो होगा इसका? Yes, सर sir. पीडीएफ। हाँ, चलो पीडीएफ है ना, देखना आप। तो ये देखिए, इसी क्वेश्चन बहुत सारे देख सकते हैं हम, है ना? वी डोंट हैव मच टाइम, सो यू शुड रेफर टू इट। एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू डिस्कस विथ मी। Okay, so let me stop presenting, and any question now you can tell me. How many? Only 14 of you are. Yes, any question beta? Myths and taboos you must have read, है ना? So next chapter is, can you tell me? Force and फोर्स pressure. एंड Yes, sir. Force and परसेंट pressure. प्रेशर। Now we will move into physics. Okay, very interesting chapter is that, force and pressure. Okay, shall we conclude? See the exercises. Any question which you want to discuss, discuss me in the next period, and then I will introduce the chapter force and pressure. But we'll discuss the questions सर in the next period. Okay? सर हाँ बोलो। अच्छा, सर स्मोकिंग भी नहीं करना चाहिए ना? हाँ, स्मोकिंग भी नहीं करना चाहिए बेटा। स्मोकिंग से कुछ भी फायदा नहीं होता है। फालतू का टार जमा होता है लंग्स में, और फिर दैट कैन कॉज कैंसर। स्मोकिंग भी इज अ बैड हैबिट, और वो भी एडोलेसेंस एज में। कई लोग कह देते हैं, जब स्मोकिंग करते हैं उस समय क्या होता है, नशा आता है। नशा आता है तो क्या होता है, बॉडी जो है, जो नर्वस सिस्टम है ना, वो थोड़ा लेट होता है। तो उस समय लगता है कि हमें कोई दुख दर्द नहीं है ना। एक्चुअली दर्द तो है बॉडी में, बट नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, उसको लेट रिएक्शन दे रहा है ना। तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है अच्छा लग रहा है ना बेटा? सो दैट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल फॉर एट एनी एज ग्रुप। स्मोकिंग इज नॉट एट ऑल गुड। और याद रखिए, जो स्मोकिंग करने वाला है ना, उसकी तो बॉडी थोड़ी एडजस्ट हो जाती है। जो नॉन स्मोकर है, आसपास जो लोग हैं, उनको ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है उनका, स्मोकिंग करने वाले से। क्योंकि जो हम वो हमने धुएं से होता है, उसका जो नाक में से धुआं निकलता है। हाँ, तो जो है ना, अगर कोई ऐसा है, ऐसे इट्स ए क्राइम, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पब्लिक में स्मोकिंग नहीं कर सकते आप, है ना? या ट्रेन में, बस में, जहाँ बहुत लोग बैठे हैं और कोई एक स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, तो हम उसको उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, उसको जेल भिजवा सकते हैं। सर इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होता है क्या? यस बेटा, पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना, पूरा बैडली अफेक्टेड होता है बेटा। उन लोगों को सबसे पहले एजमा हो जाएगा एज से पहले, और उनको वो हमेशा कफिंग करते रहेंगे, और वो खांसते भी रहेंगे, फिर पीते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो दूसरी बीमारियां भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे खास मुफ्त में बांटते हैं वो आपका क्या बोलते हैं उसको, टीबी। गुड। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? नो सर।
Good. So shall we conclude? है ना? You have to Yes, see sir. the chapter and question जो exam में पढ़ा वो देख लेना अच्छे से, है ना? Example question देखिएगा, and if you need discuss in the next class, otherwise we'll introduce force and pressure. सर ठीक है? हाँ जी, सर बोलिए। वो गर्ल्स में हिप्स में क्यों चेंज आता है ड्यूरिंग पबर्टी? देखो बेटा, जो हिप्स का रीजन है ना, उसी रीजन में आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सिचुएटेड है, ओवरी एंड ऑल अदर ऑर्गन, जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, ये हिप्स रीजन नहीं है, तो उसी रीजन में चेंजेस आते हैं, सो दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना? उसी रीजन के थ्रू दैट स्पर्म विल बी पास्ड एंड ओवम विल रिलीज, आई मीन ovary will release ovum, and in the fallopian tube or oviduct the fertilization will take place, and after that the developing embryo will be embedded in the wall of the uterus, and further development will take place, and then after then the baby has to be born through the pathway. So that reason is very very important, and that is why it grows bigger in size during adolescence. Okay. Hi Ram. Sairam sir. ठीक है बेटा, सैरम सर। क्लोज। सर आज भी आपको वो नेम सेंड करना है क्या? नहीं नहीं बेटा, आज नहीं, आज दिखा रहा है मैं 17 तो दिखा रहा है, 17 से ज्यादा को बच्चे आए हैं, नहीं आए ना, 17 दिखा रहा है हमें, ठीक है? ऐसे प्रिकॉशन तौर पर भेज देना, है ना? आप ध्यान रखना। मैं ओके सर। Sairam sir, thank you sir. ओके बेटा, so साईराम सर, साईराम Sairam sir. चैन शांति साईराम पाठ। सर। शांति शांति शांति। यस, सैरम सर। साईराम। साईराम सर।